Assalamu alaikum friends. Today we'll be continuing our lecture refraction, and it's the interesting part of it since we are going to observe refraction in our atmospheric surrounding. So let's begin. So some basic we will clear it again as I have done it in previous lecture, but we revise it because that basic will be fully used for these all phenomena like twinkling of a star. What are the basic? Let's see. We know this is our earth. This is our earth, EARTH, and earth is surrounded by atmosphere. Atmosphere is the layer of air. Okay. And this is star, far away. A single point. Star is here. This concentric circle, which is in green color, what it represents? Since Earth having gravitational pull, due to gravitational pull, the gravity will attract, it will force the gaseous molecule more towards itself. It means the density of air is suppose layer A, layer B, layer C, layer D. Yeah. The density of air particle, air molecule will be more in A as compared to B, more in B as compared to C, more in C as compared to D. Its nature is easy because of gravitational pull. So heavier air particle will be here, and the lighter will be in the upper layer. That is the reason. If you are filling the balloon, so mostly you are filling carbon dioxide and from your mouth in the balloon, and you tie it the corner and you just lay it. What will happen? The balloon will settle on the ground. It will not fly top in the sky. But same balloon, if you fill it with hydrogen and tie up the knot, after once you leave, it will fly in the sky. Yes, because hydrogen is lighter, that's why it is taking the balloon upward. You know, the people who go to mountain climbers, when they go to Everest, they take oxygen cylinder also. Why? Oxygen cylinder is needed because the mountain is here. In this area, the oxygen percentage is less. Oxygen percentage is less. That's why they carry when they are top at the mountain base. So what we got it? The layer of air or atmosphere around the surface of that, it is denser. As we go upward, it is lighter. It is denser in optically also. Means for optical, as I clear you in the last lecture, there is density, mass upon volume, but there is optical density is different. Optically, if we are talking, optically means in the sense of light. That way also the density of air is more of here, less. Means this section it is rarer and this here near that it is denser. So point to be noted. Now what the point we have to note down? Near the surface of earth, optical density is more. Yeah. As on
on moving away from Earth, optical density decreases. It means it is आई रेयर हो जाता है, रेयर मीडियम. Hope it's clear to you. 2 points. One more thing. During the summer season, you are at the top of your home floor, and this is your terrace. This is your terrace. विंडो टेरिस है. अभी टेरिस पे जब यू गो एंड स्टैंड हियर, or you are not wearing the footwear. You are not wearing the footwear. The timing is 2 p.m. 2 p.m. noon. Timing is, and you are not wearing the slipper. What will happen? You will face heat stroke. Heat burn. Where? On which part of your body? On the face, on your head, on your body part, yeah, on your the foot, the lower part of your foot. Where you will face? Do you remember? You are going to face heat stroke on your lower part of your foot. Why? What the reason? The reason is that the terrace, the earth absorb heat more than the air. Earth absorb heat more than the air. So the temperature of this terrace, suppose ये अगर ये 60 है ना, तो ये का टेम्परेचर में भी 40 या 40 रहेगा, इतना का डिफरेंस रहेगा. दैट वाई आप रोड पे गर्मी में ओके हॉट सीजन है, यू वॉकिंग ऑन द रोड, अगर नंगे पैर हुआ, जूता नहीं है या किसी ने चोरी कर लिया, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक. इसी के लिए खास के मक्का में जाते उम्रा पे, तो अगर चप्पल नहीं रहता तो उनका पैर जल जाता है. आप पूछो जो उम्रा हज किए और गर्मी के टाइम में उन्होंने हज किया था, तो पैर जलता है. ये नहीं कि स्किन ये सब ज्यादा जलता है, वो पैर चप्पल की वजह से परेशान रहते. चप्पल नहीं है किसी का अगर मिस हो गया तो इससे क्या पता चला कि अर्थ ऑब्जर्व हीट मोर देन द एयर. क्लियर? हाँ. अभी देखो यहाँ पे जब सनलाइट रहेगा तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ will be more. Temperature of the earth will be more. तो क्या होगा? Temperature of the earth will be more. तो यहाँ पे एयर क्या होगा? हीटेड होगा. Air will get more heated. जब air will touch the surface of the earth, तो it will get heated. Heated air क्या होता है? उसको पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, and they move far away from other. है ना? मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. ये मैं डे टाइम का बता रहा हूँ. I am talking about daytime now, and this is density is normally ऐसा होता है. यहाँ पे डे टाइम में क्या हो रहा है कि अर्थ इज वेरी हॉट, है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर क्या रहेगा? इज मोर, है ना. तो एयर विल व्हेन टच द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल बिकम लाइटर. क्या होगा? लाइटर हो जाएगा, एंड इट विल मूव अपवर्ड. इट विल मूव अपवर्ड. तो ऊपर का लेयर क्या रहेगा? ऊपर का डेंसर रहेगा, अर्थ के पास क्या रहेगा? रेयर रहेगा. उल्टा हो रहा है. यहाँ पे डेंसर इधर का डेंसर, लेस डेंसर मतलब रेयर हो गया. यहाँ पे भी और रेयर हो गया. यहाँ पे डेंसर ये हो गया डे टाइम में, और रेयर डे टाइम समर सीजन में. रेयर क्या हो गया? हमारा अर्थ सरफेस हो गया, बिकॉज अर्थ सरफेस इज वेरी हॉट. व्हेन एयर टचेस द अर्थ सरफेस इट बिकम it absorbs the heat and it expands, है ना. due to that density decreases. तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है जब अर्थ सरफेस पे टच होता है, और ऊपर के सरफेस पे डेंसिटी ज्यादा होता है. These two different phenomena. अभी हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में. Clear?
अभी आपको मालूम है कि as the density decreases increases, तो refractive index also will decrease and increase. The refractive index is more for optically denser medium and less for optically rare medium. Clear? मतलब it will bend more away, more bending, less bending. Yes. Refractive index more for optical denser medium, less for optical rare medium. डेंसर मीडियम में बेंडिंग ज्यादा होगा, रेयर मीडियम में बेंडिंग लेस होगा. मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है, बेंडिंग ज्यादा होगा, है ना. तो बेंडिंग जब डिफरेंस आता है इफेक्टिव इंडेक्स का, बेंडिंग ज्यादा होगा. ओके. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस एआर रिमेन कांस्टेंट, है ना. अर्थ सरफेस पे हमेशा कांस्टेंट आता है? नहीं. It keep on moving. ये डायरेक्ट हो गया, ये ऊपर गया, इंडेक्सर वाला नीचे आएगा, है ना. रेयर है, डेंसर इधर है, ये इधर है. ये मूव, तो डेंसिटी कीप ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होते जा रहा है. इट नेवर रिमेन कांस्टेंट, है ना. इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली समर सीजन डे टाइम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है ना. बिकॉज ड्राई एयर बहुत मूव होते हैं फास्ट. रेयर इधर आके रेयर ऊपर चला गया, फिर डेंसर नीचे आया, ऐसे कीप ऑन गोइंग ऑन. फॉर दिस रीजन सपोज यू आर बर्निंग, है ना. ये आपने आग लगाया, दिस फायर, है ना. फायर बर्निंग, यहाँ पे वुड इज देयर, ऐसे फ्रॉम वुड द फायर इज बर्निंग, दिस द फायर. अब दिस हियर द एरिया नियर द फायर, इट इज विल बी रेयर, या, एंड यहाँ पे क्या होगा, डेंसर होगा, है ना. एंड इट कीप ऑन चेंजिंग. अभी क्या हो रहा है कि suppose this is awesome object is kept over here, one tree is there, and you are standing this side, one person is standing this side. What he will observe, the light which is coming, light coming from here, अभी क्या रहे हैं, तो once it going to it become rarer, है ना. फिर इधर आए तो ये डेंसर हो जा रहा है, तो इधर बेंडिंग ज्यादा होगा, और ये क्योंकि ये डेंसर है तो इट्स मूविंग हियर दिस साइड. व्हाट हैपन, तो इट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि डेंसर रेयर हो रहा है, तो इसका इमेज क्या होगा, इट विल कीप ऑन मूविंग. इमेज क्या होगा, कीप ऑन मूविंग, क्योंकि ये एयर द्वारा डेंसर और रेयर कीप ऑन चेंजिंग हो रहा है. रेयर मीडियम का रेयर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, डेंसर नीचे की तरफ आएगा. अब जब ये कीप ऑन चेंजिंग हो रहा है बार बार, इसके वजह से हमें जो इमेज दिखेगा वो क्या होगा, चेंजिंग दिखेगा, हमेशा उसमें फ्लक्चुएट होते दिखेगा, है ना. फ्लक्चुएट होते हुए दिखेगा इसमें इमेज. फॉर दिस रीजन, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आप कभी भी बर्निंग करो, बर्निंग फ्लेम के ऊपर का जो इमेज आएगा सामने से आ रहा है, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग. तो सी दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, rarer to denser to rarer, keep on going on. For this reason, the image formed observed by the person is also keep on fluctuating, तो change होते रहता है उसमें. For this reason,
तो अभी इसके बारे में मेराज के बारे में पढ़ते हम लोग अभी। होप यू हैव नोटेड डाउन। Let's see the PPT now. So yeah, it is an illusion of appearance of water on a hot road in a desert. Yeah, this example, okay, मेरा example is there. Twinkling of star का because all are related. तो the twinkling of star very important topic है. उसके अंदर mirage is one of the topic. जब आप hot desert में जाएंगे ना, hot desert में तो what is happening there? You will find somewhere water. Water how you find? Because उसमें रिफ्लेक्शन आता है ना? Because उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन आता है। जब रिफ्लेक्शन जमीन में आता है किसी चीज का उल्टा, तो हमें लगता है कि वहाँ पे पानी है। तो इट इज नॉर्मली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। अब वो आदमी जो होता है रन करते हैं वहाँ पे पानी है, थोड़ा देखा पानी नहीं है, फिर देखा दूसरा जगह क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन आ रहा है। दे इज रनिंग देयर, इट कीप ऑन गोइंग एंड पर्सन समटाइम डाई। इसका वन मोर ऑब्जर्वेशन यू विल फाइंड ऑन द हाईवे। जब हाईवे पे समर सीजन है, 2 PM 12 नून हो रहा है, तो रोड पे देखेंगे द थिंग इज लाइक वाटर इज देयर। दूर में सामने स्ट्रेट है, ओके, द कार इज मूविंग स्ट्रेट डायरेक्शन, और दूर में सामने नजर आ रहा है कि वाटर इज देयर। दैट इज नॉट द वाटर, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर अंडरस्टैंडिंग वाटर इज देयर। व्हेन यू रीच देयर देयर इज नो वाटर, so because of reflection is going on there. अब ये क्यों होता है? We will study it now. तो ये हॉट सीजन में ऐसा होता है, appearance of water on a road or in a desert. This is called as mirage. See, यहाँ पे वाटर लग रहा है, यहाँ पे भी देखो लग रहा है। What is there? The road is okay, good, and what is here available over here? It is appear to us. So this is the illusion. Illusion मतलब misunderstanding. See here. So this is the mirage formula. The such में water is not available or there. Local atmosphere condition affect the reflection of light to some extent. तो यहाँ पे the reason is local atmosphere affect the reflection of light. How it affect we will see. Hot air is rarer. Hot air is rarer. Refractive index of air keep increasing as we go up to height. है ना? As we go to increasing height because during summer season higher in latitude the more refractive index, because surface of air is earth is very hot एयर है, और अर्थ है तो एयर भी का हॉट होगा। हॉट एयर क्या होता है? लाइट होता है। तो ऊपर का क्या होगा? हैवी, नीचे का लाइट हो रहा है। तो इफेक्टिव इंडेक्स ऊपर का मोर इज देयर। द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ डिस्टेंस कीप ऑन चेंजिंग हो रहा है वहां पे, बिकॉज रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है? लाइट है, हमें यहाँ पे ज्यादा हॉट है, जो इमेज बन रहा है हमें, तो डिफरेंट मीडियम से वो रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, अलग अलग मीडियम से। डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, सी हॉट एयर इज देयर। सी द इमेज व्हाट इज फॉर्मिंग। This is called mirage. See, the air is it is hot air is there, hot surface is there, and the air is hot over here. The image is coming, okay. Since it is hotter, the image is coming here. अब जब इमेज आ रहा था इधर से, हम लोग देख रहे थे, but it was happening
द इमेज यहाँ पे क्या जैसे नीचे आ रहा है तो बहुत ज्यादा सरफेस और ज्यादा हॉट हो गया, तो डेंसर सरफेस है ना, डेंसर सरफेस कितना ये बेंड होगा, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है ना। एंड यहाँ पे हमारा आई इज देयर, वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर ऑब्जर्विंग हियर। तो हमारे आई को क्या समझ में आता है कि लाइट इज इट इज आई को तुम्हारे ब्रेन को कि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो क्या करता है इमेज स्ट्रेट बना रहा है, इमेज स्ट्रेट बना रहा है, स्ट्रेट बना रहा है एंड इमेज इज फॉर्मिंग, क्या हो रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में, उल्टा बनता है इमेज। तो इमेज उल्टा बनने की वजह से वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वाटर अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज देयर। तो ये वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, रेयर टू डेंसर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिराज इज फॉर्मिंग। lightning during the some festival, okay। और अब यहाँ पे you observe the this side, you will observe image क्या होगा हमेशा फ्लैक्चुएट होता रहेगा, image keep on fluctuating because of change in density of air, air रेयर है, ऊपर से फिर से रेयर वाला एक्सपैंड हुआ, डेंसर करीब आया, तो इसकी ऑन चेंजिंग जिसकी वजह से इमेज जो भी आएगा इधर आजू बाजू बिल्डिंग का वो फ्लैक्चुएट होते हुए आएगा। डायरेक्शन ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द ओरिफाइस चेंजेस ड्यू टू चेंजिंग इफेक्टिव इंडेक्स अबव द फायर, does the object appear to be moving? No. Twinkling of star. Effect of atmospheric condition on reflection light can be seen in twinkling of star also. The star are self luminous, उससे चमकता है and can be seen twinkling, है ना। Star are self luminous, can be seen at night in the absence of sunlight. They appear to be point source because of they being very large distance, है ना। By point source है मतलब एक पॉइंट, यहाँ पे तो बड़ा इमेज करके दिखा रहा है, एटलीस्ट दे आर appearing to be बहुत दूर से दिखता है, ऐसा पॉइंट दिख रहा है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इट इज नॉट ए सोपी, ये अंडरस्टैंड करने के लिए बताया गया कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। अच्छा यहाँ पे देखो वन मोर थिंग आपकी बुक में दिया हुआ है कि सपोज द इमेज ऑफ स्टार इज ऑफ ए, देखिए हमें इधर किधर दिखेगा ए डैश के पास दिखेगा, सन का पोजीशन इधर है सपोज, लेकिन सन अपियर टू बी इधर आएगा, मून का इधर है और मून किधर दिखेगा इधर दिखेगा। व्हाई सो? बिकॉज व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम स्टार, है ना, या मून है या सन है, तो इट इज क्या है ये, दिस इज द रेयर मीडियम as it enter the earth atmosphere, तो ऊपर का ये क्या होता है रेयर होता है ना, रेयर हुआ वो इधर इशारा है डेंसर है, मोर डेंसर मोर डेंसर मोर डेंसर मोर डेंसर, तो इट्स कीप ऑन बेंडिंग, इट्स कीप ऑन बेंडिंग, इट्स कीप ऑन बेंडिंग। तो ये क्या होता है हमारे आई के पास जब आते हैं क्या तो बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है, यस। तो हमारा आई क्या करता है इमेज सीधा बनाएगा, उसको लगता है कि ये स्ट्रेट आ रहा है, इमेज क्या हुआ स्ट्रेट आ रहा है, टर्न बैक करता है इमेज स्ट्रेट बन रहा है, इसलिए हमें पोजीशन जो दिखता है वो एपरेंट पोजीशन है, दैट इज नॉट द रियल पोजीशन, रियल पोजीशन इज दिस वन एंड एपरेंट पोजीशन इज दिस वन। तो हमें हेवनली बॉडीज का जो पोजीशन है दे आर एपरेंट, हमें क्या समझ में आता है दे आर एपरेंट, वो सही पोजीशन वी आर नॉट गेटिंग फॉर दिस रीजन। As the density of air increases with lowering height,
above the surface of that, the refractive index also increases. Start coming towards the keep on as travel from a rarer medium to denser medium and constantly bend toward the normal. Normal की तरफ क्या हो रहा है? Bend होता है. Hope it's clear to you all. This make the star appear to be higher in the sky as compared to its actual position. Actual position करता हो ये इधर दिख रहा है. The apparent position of star keep changing a little bit. क्यों changing हो रहा है? This is because of the motion of the atmospheric air and changing air density and temperature. Because of this, the refractive index of air keep on changing. अभी देखो एक और चीज था, मैंने बताया कि the air never remain constant. It keep on changing. Air in the atmosphere they also change. Wind direction, temperature की वजह से, है ना, pressure की वजह से, it keep on changing. अभी इधर density, कभी इधर lighter हो गया, कभी इधर denser हो गया. It keep on going on. अब light is coming from a single point. Okay, light is coming from आप सिंगल पॉइंट. तो व्हाट विल हैपन कि एक बार क्या हुआ, लाइट इंटर किया हमारे आंख को, सपोज हमारे आंख को मैंने बेंड यहाँ पे दिखाया जिस क्योंकि हमें दूसरा चीज समझने का, ये अब पोजीशन समझना आ गया. अभी हमें दूसरा चीज समझने का, एक बार लाइट हमारे आंख में इंटर हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटर किया, हमें एक पॉइंट दिखा, वी नो कि दिस इज द स्टार. अभी क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो गया, है ना. अभी डेंसिटी चेंज हो गया तो वापस से क्या हो गया, ये डीप दिखा, रिफ्लेक्शन, डेंसिटी चेंज हो गया तो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, मोर रिफ्लेक्शन हो गया वहां पे. तो डेंसिटी चेंज हो तो सेकंड टाइम क्या हो रहा है, डीप दिख रहा है, क्या हो रहा है, डीप दिख रहा है, डल दिख रहा है. फिर नेक्स्ट टाइम वापस से डेंसिटी वैसे आ गया, ये फिर से दिखना स्टार्ट हुआ. सिंस इट इज अ सिंगल पॉइंट, है ना, ये पॉइंट क्या होगा, डीप होगा तो हमें डीप दिखेगा, ये पॉइंट हमें ब्राइट दिखेगा तो ये डीप ब्राइट दिखेगा, हमें ऑब्जर्व हुआ. तो ये पॉइंट ब्राइट और डल नहीं हो रहा है, जो एयर है मीडियम इट कीप ऑन चेंजिंग, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, ब्राइट और डल दिख रहा है, ब्राइट और डल दिख रहा है. ये वजह से क्या हो रहा है, हमें ट्विंकलिंग होता है, कभी एक बार ब्राइट और एक बार डल दिखता है स्टार. Because of this refractive index of air keep on changing, है ना, ये चेंजिंग की वजह से the star. अब देखो we do not see the twinkling of planet. planet को देखो, ये जो हमारे स्टार का ट्विंकलिंग हो रहा है, स्टार ट्विंकलिंग हो रहा है, ये प्लैनेट को ट्विंकलिंग करके नहीं देखते. क्वेश्चन आता है व्हाई स्टार ट्विंकल, व्हाई डू नॉट प्लैनेट ट्विंकल, व्हाट इज द रीजन. अभी देखो प्लैनेट का साइज कितना, क्योंकि प्लैनेट इज वेरी नियर टू अर्थ, है ना, वेरी नियर टू अर्थ. जो स्टार इज मच बिगर बट इट इज वेरी फार एंड प्लैनेट इज नियर टू अर्थ, तो वी कैन समटाइम्स सी विद आवर नेकेड आई, है ना. लार्ज साइज प्लैनेट हमें दिख जाते हैं, बड़े साइज प्लैनेट हमें दिख जाते हैं. तो ये ट्विंकलिंग नहीं करता है, जैसे मून है ट्विंकलिंग नहीं करता. व्हाई, बिकॉज फर्स्ट ईयर. अभी देखो यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ इमेज, यहाँ पे आप खड़े हैं, एंड इट एक्ट एज एक प्लेट, एक फ्लैट जिसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट इस तरह बना सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं साहब. अनलिमिटेबल नंबर ऑफ पॉइंट आती है. अब एक पॉइंट से क्या हो रहा है, लाइट इधर आया, दूसरे पॉइंट से आया, तीसरे पॉइंट से आया, ये और सुविधा हमें क्या दिख रहा है, फ्लैट डिस्क दिख रहा है. सपोज एक पॉइंट से लाइट क्या हुआ, डिम हो गया, क्या हो गया, डिम हो गया, यहाँ पे सपोज डिम हो गया, जैसे डिम हो गया, तो दूसरा पॉइंट क्या करेगा, उसको नॉलिफाई कर देगा, है ना. ये जो पॉइंट क्या करेगा, उसको नॉलिफाई कर देगा. फिर ये डिम हुआ तो ये क्या गया, ये वापस ब्राइट हो गया, ये डिम हो गया तो ये ब्राइट हो गया. उसी तरह ये डिम हुआ तो ये ब्राइट हो गया, ये डिम हुआ तो ये वापस ब्राइट हो गया. तो इट कीप ऑन नॉलिफाइंग ईच अदर डिमनेस, है ना, एक दूसरे का डिमनेस क्या हो रहा है, नॉलिफाई कर रहा है. तो ओवरऑल टुगेदर हमें क्या दिख रहा है, ये ब्राइट दिखता है, ये ओवरऑल टुगेदर हमें क्या दिखता है, सब ब्राइट लाइट दिखती है हमें से. दे डू नॉट ट्विंकल बिकॉज़ इट हैज n नंबर ऑफ पॉइंट ओवर देयर. इट्स अ
डिस्क ऑफ पॉइंट ऑफ एरिया। स्टार में क्या था, एक सिंगल पॉइंट था। अब इसको नॉलिफाई हो गया, ये डीम हो गया, तो इसको नॉलिफाई करने के लिए वो विल कम नो वन। तो ये क्या हो गया, एक बार डीम दिखा, एक बार लाइट दिखा, लेकिन यहाँ पे बिग पॉइंट हो रहा है, डीम और लाइट यहाँ पे भी हो, इस हैपनिंग ओवर हियर आल्सो, बट अनदर पॉइंट क्या कर रहा है इसको, इज ब्राइटनिंग और नॉलिफाइंग। तो हमें ओवरऑल जो दिख रहा है प्लैनेट क्या दिख रहा है, ऐसा ब्राइट दिखता है वो। Hope you understood this also. This is because planets are much closer to us as compared to star. Therefore, do not appear as a point source, but appear as a collection of points. Because of changes in the atmosphere, effectively the position as well as brightness of invisible point source keep on change. For this reason, but average position and total average brightness remains unchanged. Planet do not twinkle. The position do not change. Now, by okay, this is the thing. I will start afterwards. Horizon. In the next video.